Hello. A lot of people have been showing some trust, and ये वाला नहीं, ये capital US वाला नहीं. There has been some hate I've been receiving, but उसके मुकाबले there's also some positive reception. So I just wanted to let you guys know. I just wanted to let you guys know कि मेरा it's a green tick in the prelims, and there's this Master Blaster mains program run by some Sachin Arora sir. जो इस प्रोग्राम से there was the rank 1. So इस प्रोग्राम का एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 27-28 को. जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोग में से कुछ बच्चों को वो छांट के they're going to enroll them into a program, a batch of some students. Last year 50 students का था, और उनके बीच में फिर rigorous exercise होता था, और yeah, so this time they're going to take I think 150 people, and उसका screening test हुआ था 27-28 को. I think उसका result कल या परसों निकलेगा. So if I get through that I'll be in this batch, and मतलब अगर नहीं भी रहा तो I'll somehow find what I have to do exactly, because I think from the experience I have of last year's mains and the marks I received, I think I know what how and what I need to improve. But this would be good. लेकिन I'm just not going to speak only about my result and my future thing. वो मुझे बताना था कि वो मुझे बताना था because I just wanted to, yeah, express like I have here, and I have been received uh, well, अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगा. So I just wanted to share more. But apart from that, I I have been through the dark phases lots of times. Have not qualified prelims thrice. So I've seen the dark evenings and dark nights, gloomy times. I know how it feels. So so I just had to say some things because I like to explain things, I guess. So अभी जो हैं, there are there are people who haven't gotten past the cutoff this time, and there are people who haven't given the attempt and are going to appear next year, and they're looking at how things are unfolding, how emotional things can be for people. वो देख रहे हैं because they need to know that they'll be going through the same phases in future. If you're giving this exam, you will have to go through these ups and downs. The the process will test you enough, all right, and the process makes you a stronger person. कुछ और बना देता है आपको. तो आप लोग पहले से रेडी रहिए चीज़ों के लिए. और those who didn't get past the cutoff, I'm not addressing, I mean, each and every one here जो भी finds any value in this video, अगर if there's something positive you get, then that's what I really uh, am trying to give. So yeah, I know it's very uh, emotionally tough time to go through. I remember distinctly how it felt. जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था मुझे exactly याद है how I felt. मेरी एक चीज़ है, आदत है लिखना. बहुत टाइम से मैं लिखते आ रहा हूँ. तो उस दिन में मैंने जो लिखा था वो भी मुझे याद है. बट अभी मैं यहाँ पे वो सब नहीं कर रहा. बस मैं बता रहा हूँ कि ये दिन आपको याद रहेगा. ये कोई ऐसा वैसा मोमेंट नहीं है. डार्क है, दुख है इसमें ये, लेकिन उतना ही ये आगे जाके आपको आपके मेमोरी में रहेगा. एक इम्पॉर्टेंट इवेंट
जैसा एक वाटर ब्रेक, वाटर शेड मोमेंट, ऐसा कुछ रहेगा आपके दिमाग में, इसका कोई मीनिंग रहेगा आज के दिन का। तो बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं इस साल एंड दे couldn't get through. So first attempt में generally you don't have much idea unless there are some people जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ कर लेते हैं, प्रीलिम्स भी कर लेते हैं और सब कुछ भी कर लेते हैं। उनका तो उनका डेडिकेशन अलग ही है, दे हैव फाउंड द राइट वे। जनरली जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ठीक है, हम दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, इनिशियली पता कर रहे हैं, तो वो अपना रास्ता धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। ये ये कोई भाग दौड़ वाली रेस नहीं है कि इसी साल मतलब किसी को कोई इतना मोटिवेटेड होता है कि इसी साल मैं क्रैक करूँगा। लेकिन ये एक लंबा रास्ता होता है, इस साइकिल के थ्रू दो तीन बार जाके उसके बाद यू वुड हैव हैड अंडरस्टूड दिस साइकिल एंड देन यू क्रैक इट। तो कोई कोई लंबे रास्ते लेते हैं, टाइम्स लेते हैं, कोई इमीडिएटली करता है, सबके अलग अलग अपने जर्नीज होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्टर्स जो हैं, अगर उनका नहीं हुआ है, दैट मस्ट नॉट यू नो बहुत ज़्यादा उनको डेवस्टेट यू। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में इट इज़ टफ टू क्रैक एंड आप जितने भी आप क्लोज हुए होंगे, यू मस्ट बी एक्चुअली proud if you're very close to the cutoff, and definitely the numbers are going to improve if you give it a try. First attempt hai, so I'm sure you can give it another try while also doing some things in parallel. We'll talk about that in whatever brief way we can. Your second, third attempt and so on आगे भी हैं. I know it's very emotionally tough. Second तक भी ठीक था, I think third gets very emotional. तो उसके आगे का तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि थिंग्स गेट टफर एंड टफर। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दोज फेजेस। आई रिमेंबर यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था जब मुझे रिजल्ट पता चला था, और बाहर क्लाउडी था बहुत ज़्यादा, काफ़ी ग्लूमी, शाम के शायद 6-7 बज रहे थे, अंधेरा पूरा हुआ नहीं था, और एक मिरर था यहाँ पे। और कैसे मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के ज़मीन पे डिस्कस कर रहा था उनसे, क्या करूँ, सपोर्ट कर रहे थे मुझे वो लोग। तो डार्क फेजेस आते हैं लेकिन आपको याद रह जाते हैं ये डिफ़िकल्ट टाइम्स। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, आप पूरा डिसहार्टन मत होइए, मेरी बात सुनिए अभी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम इज़ अ टेस्ट ऑफ परसीवरेंस। अगर आप एक साल में भी कर रहे हैं या कितने भी टाइम ले रहे हैं, इट्स अ टेस्ट ऑफ परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब लगे रहना, मुश्किल हालात में भी अपने एम के लिए आप लगे रहते हैं, उसको परसीवरेंस बोलते हैं, उसका टेस्ट है। एंड सिर्फ परसीवरेंस, परसीवरेंस सही डायरेक्शन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से आपको फ़ायदा है और क्या करने से फ़ायदा नहीं है। सो यू नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द एग्ज़ाम डिमांड्स। और ये आपको एक्सपीरियंस से आता है आफ्टर गिविंग मल्टीपल एग्ज़ाम्स योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड। किसी और के एक्सपीरियंस से जो वो आपको बताएगा, वो यू कैन टोटली रिलाई ऑन इट। You have to find your own way in this if you're serious. If you're not serious, the case is totally, you can't speak much about that case. But if you're serious and you're unable to find the way, there are some people who are serious and they find ultimately the right path even if they do not get through this time. See, I know some people who are very serious and who are on the right path but did not make through this time. But I'm sure something is waiting for you on the other side, and when the time comes, when the right time comes,
you'll be there. ये होगा आपके साथ. If you're on the right path and doing the right things, ultimately you'll be there where you should be. ये जो एग्ज़ाम है, it requires you to be prepared for loss. All right. तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ. बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्रैक इट, उनके बारे में और कुछ बात करना चाहता हूँ मैं. कि कुछ लोग इसमें से सही रास्ता देख चुके हैं, बट मे बी उनकी टाइम की कमी थी या कुछ भी. लेकिन कुछ लोगों के पास दे हैवंट फाउंड द राइट वे, एंड आर दे सीरियस एनफ टू फाइंड इट, फॉर द सर्च फॉर इट. जैसे हम हर साल पीटी पढ़ लेते हैं जब एग्ज़ाम आते हैं. पीटी खुद से भी नहीं पढ़ते, कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब में वो देख लेते हैं. आप रिवाइज नहीं कर पाते बहुत बार. और स्टैटिक भी रिवीजन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ का रिवीजन जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी. मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले आई वॉज एबल टू रिवाइज द एंटायर मृणाल एक्सेप्ट द सिक्स्थ पिलर. ओके, पांचों पिलर आई वॉज एबल टू रिवाइज बिकॉज आई हैड मेड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम मृणाल. मृणाल के हर एक पेज से मैं निकाल के अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाता था. सो ये है वो शॉर्ट नोट्स. आप देख के आपको क्या लगा आप सोचिएगा. इंटरेक्शन का तो यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि ना यहाँ पे हेटर्स ये सब बहुत लोग हैं. लेकिन ये है, मैंने 13 पेजेस में 13 पेजेस में पूरे मृणाल के जो भी चीज़ें मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ उनको मैं रख पाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें मुझे याद रहेंगी, ये चीज़ें मुझे याद करनी है फिर से पढ़ के. ये आइडिया आपको कब आता है? खुद से आप एग्ज़ाम को समझेंगे तब आएगा, और ना कि कोई और जिसको जितना समझ में आता है वो बस आपको बता रहा है और बोलेगा कि बस यही है, ये कर लो हो जाएगा. अब जानते हो मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ. तो इतना मेहनत आप खुद से करेंगे तब जाके जो भी पूछा जाएगा इवन लक आपको फेवर करेगा. ये ऐसा नहीं है कि सबने एक जैसा मेहनत किया. ये बात सही नहीं है कि सबने एक जैसा मेहनत किया, सबने सब कुछ किया, बस लक की वजह से कुछ लोग इधर है कुछ लोग उधर है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लक का काम आता है, लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव. लक जो मेहनत किया होता है उसको फेवर करने का ज़्यादा प्रॉबिलिटी है. रैंडम चीज़ें जो मैंने याद करी होंगी यहाँ से, मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह याद थे अपने नोट्स में से, क्योंकि मैंने एक दिन पहले रिवाइज किया था. एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए आपको खुद के नोट्स चाहिए होते हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं. जो उससे पहले आपको याद है चीज़ें वो आप ही को पता है, जो याद नहीं है वो लिख के रखोगे. आप ही को पता होगा कि कौन सी चीज़ें मैं भूल सकती हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे फिर से पढ़नी पड़ेंगी, कितना मुझे लिखना पड़ेगा नोट्स में ताकि सब कुछ याद आ जाए, कितना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि आपको सब कुछ न लिखना पड़े. ये सब चीज़ें आप ही को पता है आपके बारे में. तो कोई और स्पून फीड करेगा तो नहीं चलेगा. वो बिगिनर्स के लिए फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, उनको इनिशिएशन के लिए काम आता है कि अच्छा एग्ज़ाम में ये सिलेबस है. बट जिसको एक्चुअली क्रैक करने की स्टेज के पास होता है उस बंदे को खुद से प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है चीज़ें, किसी और के जो भी ठीक है. खुद का मेहनत किए बिना, मतलब 70% 75% खुद का मेहनत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप. तो मैं और कुछ बोलना चाहता था इस टॉपिक में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना बोलूँ, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, जिसके बारे में और बात करेंगे अगर चाहिए होगा आपको तो.
तो चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के बाद 16 जून को लोग भगदड़ में लगे कि से चेक करना है किसके कितने आए, और कोचिंग्स भी ये सब encourage कर रहे हैं कि चेक कर लो, चाहे कट ऑफ पता ना हो कि कितना हो कट ऑफ, सिर्फ कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए वो लोग आपसे मार्क्स मांग रहे हैं कि आपका कितना आया। और जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ होता है वो आपको पता है कि कितना दूर होता है असली चीज़ से। तो मैंने अपने मार्क्स काउंट नहीं किए बेसिकली, और ना लास्ट टाइम किए थे। लास्ट टाइम मेरे 89 मार्क्स आए थे, 75 कट ऑफ था। इस बार भी मैंने काउंट नहीं किए। एग्ज़ाम के बाद एक फीलिंग होती है जो जिससे पता चलता है कि क्या हाल है। लास्ट ईयर मुझे लगा कि मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ। मुझे हल्का सा विश्वास था कि हो जाएगा शायद, काफ़ी मेहनत की है कितने साल से, लेकिन मुझे लगा मैं बॉर्डर में हूँ, और लकीली हो गया। और जब मार्क्स आए तो मैंने देखा कि मैं सेफली, काफ़ी सेफली, मैं फॉरेस्ट का कट ऑफ शायद 92 या 93 था, मैं उसके पास था। अब इस साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा लगा कि मैं काफ़ी रेंज से क्रॉस कर चुका हूँ। वो ऐसा एहसास, मतलब सबको शायद ऐसा लगता है कि हाँ इस बार तो फोड़ दिया मैंने, बट राइट असेसमेंट वही कर पाते हैं जिनको एक्चुअली इस गेम का टफनेस लेवल और कॉम्पिटिटर्स का लेवल आपको पता हो। ठीक है, तभी आप राइट अनुमान लगा पाते हैं। तो आपको जो ये बोल रहे होंगे बहुत कुछ लोग कि सबका मेहनत सेम था, सिर्फ लक आपके साथ नहीं था, कोई बात नहीं मेरे साथ भी नहीं था, तो ये बातें गुमराह करने वाली बातें हो जाएंगी, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। उतना मेहनत आप करोगे तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको डेफिनेटली मिलेगा, तो आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो फंसे हुए जालों से निकलिए सबसे पहले तो। अब जैसे ही मार्केट में आते हैं, अब जैसे ही बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कोचिंग से अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, कोई कोई ऑप्शनल के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे ही मार्केट में घुसते हैं नए लोग, आपको सीधा यहाँ से जैसे ऑटो वाले उठा लेते हैं आपको, ठीक है, कि हाँ रास्ता दिखा दूंगा 50 रुपये में, 50 रुपये, मतलब एकदम 1 किलोमीटर भी नहीं है उसके लिए चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या नया सिटी है, क्या कैसा है। तो आपको ऐसे यहाँ पे जैसे ही मार्केट में घुसेंगे आपको लुभाने के लिए लोग आएंगे, ठीक है। और इसमें से आप एक के साथ जब भी चले जाओगे आप बाद में रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपको सही डिसीजन लेना है। ये मजाक नहीं है ये एग्ज़ाम, मतलब ऐसे वैसे नहीं हो जाता है क्लियर, टेस्ट करके देता है ये अच्छे से अच्छों को। तो आपको पूरा मार्केट छांट के आपको मोस्ट एफिशिएंट रास्ता आपका क्या होगा आपको डिसाइड करना होता है। शॉपिंग है इतना ज़्यादा, आप सीधा एक एक जगह पे बस जो पहले मिला वहाँ पे चले गए, अरे इसका मस्त एकदम अच्छा लाइट लगाया हुआ है बंदा, तो आप अगर ठगे गए हो तो आपको बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो चीज़ ये है कि काफ़ी एंशियस था मैं, कल परसों से एंशियस, मतलब मैं बैलेंस ही था, मार्क्स देखा नहीं था, बट दिल में ये मन था। चीज़ ये हुआ कि काफ़ी सारे मैंने गेसेस मारे थे, ठीक है, और मेरे को मतलब अटेम्प्ट्स मेरे लास्ट में कम अटेम्प्ट्स हो रहे थे, ठीक है। तो और मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा गेस मारने थे, आई थिंक 75 तक मैंने दिल से अटेम्प्ट किए, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि और अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैंने 84 अटेम्प्ट किए ओवरऑल, और उनमें से 9 में मोस्टली मुझे 2 में कन्फ्यूजन था या जो भी, तो कुछ मैंने गेसेस मारे। मेरा ये मार्जिन था कि मैं सोचा कि अगर 24 क्वेश्चंस भी मेरे गेसेस में से गलत हो जाए मैक्सिमम, तो भी मैं क्लियर कर जाऊंगा, मेरे को ऐसा लगा। तो 24 का मैंने मार्जिन दिया अपने आप को। उसके बाद मैं घर आया और अपने मार्क्स के बारे में काउंट नहीं किया, बट दिमाग में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी याद आते थे,
तो मैंने कुछ कुछ देख लिया कि जो नाम थे बुद्धा के जो तथागता और ये सब नाम थे, वो सब तीनों में, तीनों नाम बुद्धा के थे कि नहीं। जो मैंने लिख आंसर तो ये दिया था कि तीनों नाम बुद्धा के थे, पर उनमें से एक था जो कि महावीर का था, ये मुझे पता चला। वैसे एक के बाद एक चीज़ें जो मैंने गेस की थी उनको चेक किया मैं, तो 6 चीज़ें ऐसे चेक किया मैं, और 6 के 6 गलत निकले। बट फिर भी अंदर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जो 24 का रेंज लेके जा रहा हूँ उसी में से ये 6 हैं। वो 24 के जो मैं गेस या गलत होने के क्वेश्चंस मैंने अपने आप को मार्जिन दिए, उसी में से ये 6 होंगे। मुझे ये विश्वास था कि मैंने काफ़ी सारे सही किए हैं परफेक्ट। फर्स्ट राउंड में मैंने सिर्फ उतने ही मार्क किए जितना मुझे लगा कि पक्का सही है, और वो थे 35 क्वेश्चंस, एंड आई फील कि एटलीस्ट उसमें से 30+ करेक्ट होंगे। तो या, और इकोनॉमी में मुझे सीधे सीधे फोटोग्राफिक मेमोरी से मेरे को आंसर्स दिख रहे थे कुछ क्वेश्चंस में। तो मैं 6 क्वेश्चंस अपने गलत देखा, तो उसके बाद तो हल्का सा टेंशन शुरू हुआ, और वही टेंशन हल्का सा लिंगरिंग चलता रहा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैंने मार्क्स देखे नहीं थे। कुछ पढ़ते हुए गुजारा, कुछ और कुछ काम करते हुए गुजारा, जो बाकी के इतने दिनों से नहीं कर रहा था कुछ काम, वो काम। उसके बाद जब एग्ज़ाम पास आया तो फिर ये बहुत सारे लोग यहाँ पे, हाँ, मतलब यूपीएससी कम्युनिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा बातें हो जाती है, ठीक है, ग्रुप्स और ये वो हर जगह बातें, इनकी वजह से कहीं टेंशन ट्रिगर भी हो जाता है। तो वो ट्रिगर भी हो गया, और आज पूरे दिन से अभी आने वाला है, अभी आने वाला है चल रहा था। तो पूरा दिन एक तरीके से काफ़ी एंक्शस था। मैं चेक नहीं करने वाला था। मैंने अपने फैमिली को बोला कि आप लोग देख लेना, जब भी आएगा मैं बता दूंगा अभी आ रहा है, देख लेना और मेरे को बता देना, अगर हो गया तो बताना, नहीं हुआ तो मेरे को कॉल मत करना। मैं देख रहा था कि कॉल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया था। शाम हो गया, फिर बाहर वॉक पे गया मैं शाम को, हाईवे पे कुछ फ्रूट्स लेके आ रहा था मैं वापस। तो अचानक मेरे नोटिफिकेशन में आता है कि रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो मैं देखना नहीं चाहता था, मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आ चुका है देख लो, मेरे को कॉल कर देना जो भी, अगर हुआ तो, नहीं तो मत करना। लेने के लिए बहुत, मतलब मैं लास्ट ईयर इतना टेंस नहीं था। इस साल हर साल स्टेक्स बढ़ते जाते हैं भैया इसमें, और तो स्टेक्स आर हायर नाउ। तो इस साल काफ़ी, या मैं देखना नहीं चाहता था, इवन दो आई फेल्ट स्ट्रांगली कि हाँ आई हैव डन वेल, बट इवन बेटर देन लास्ट ईयर। बट ऐसा एक टेंशन था। तो मैं यहाँ पे एक हाईवे के बगल में बस स्टॉप के पास एक अच्छे हाइट पे बैठने के लिए एक था, तो मैं वहाँ पे बैठ के, घर नहीं जा पा रहा था मैं, घर जाने से पहले मैं वहाँ पे बैठ गया और गाने सुन रहा था मैं, टूल का लैटरल्स सुन रहा था। अम, फिर मैंने ऑटोमेटिकली मेरी उंगलियाँ चली गई, सेलेक्ट कर लिया मैंने पीडीएफ खोलने का, पीडीएफ खोला, अपना रोल नंबर टाइप करना शुरू किया, और शुरू के 5 डिजिट्स टाइप किए और आ गया मेरा रोल नंबर, बस। और गाना कंटिन्यू चलता रहा। एक एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चला गया, मतलब अब उसको गाने के उसमें टर्म्स क्या बोलते हैं, मतलब पल्लवी, ये सब हिंदी वाले टर्म्स तो मुझे नहीं पता, बट एक नया म्यूज़िक आया, मज़ा आया। अब जो भी क्वालिफाई होने का मज़ा होता है वो तो पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, काफ़ी इमोशनल होता है। जैसे ये इंडियन टीम क्वालिफाई होके सब रोने लगे थे, वैसा वैसा इमोशनल चीज़ होता है, द हायर द स्टेक्स आर। तो नाउ इट इज़ मिडल ऑफ द नाइट, एंड आई जस्ट मेड माई सेल्फ सम टी एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आज तो एक अच्छी रात है, लेकिन चीज़ ये है कि आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द वर्स।
आई वॉज ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि आई हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द लॉस एंड आज भी इतने दिनों में भी मैं यही स्ट्रांगली सोचता रहा कि नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, चलो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या तुम्हारा इमोशनल स्टेट क्या होगा, तो उसी को मैं मेंटेन किया। अगर नहीं होता है तो मैं क्या करता, मैं अपने फ़िलहाल तो जो हाथ में है मैं अपना बुक ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ तो मैं वो काम कर ही रहा था। और मुझे आजकल या ये इंडियन एक्सप्रेस का कुछ चस्का लगा हुआ है, तो अपने काम में करता रहता, इवन अगर हार भी जाता तो उसके लिए मैं रेडी था एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा आई थिंक अगर नहीं होता तो भी मैं रेडी था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, मेंटली मैं रेडी था। तो बट ये चीज़ है कि आज का रात तो ठीक है, बट फिर से मेंस भी आएगा, उसके भी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, अभी साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्टेजेस ख़त्म नहीं हुए हैं। तो ये दौड़ तो चलेगा और इसके लिए हम लास्ट ईयर से बेहतर इक्विप करेंगे अपने आप को। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था शायद, मतलब जिन्होंने सुना और ना सुना, लास्ट ईयर मैंने लिटरली एक अभ्यास का मॉक दिया था 15 दिन पहले मेंस के, ताकि मुझे पता चले कि टाइम पे लिख पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर कितना टाइम होता है इसका एहसास हो। और सीधा मैंने मेंस में अटेम्प्ट कर दिया और सारे पेपर मेरा यही एम था कि टाइम पे ख़त्म कर दूँ, टाइम पे ख़त्म कर दूँ। और टाइम पे सारे मैंने ख़त्म कर दिए और मेरे मार्क्स भी आ चुके हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो वो मार्क्स देख के मुझे समझ में आया कि मैं सही रास्ते पे हूँ। ठीक है, मुझे कुछ सब्जेक्ट से क्लियरली पता चला कि आई एम नॉट बैड, जितना मैं सोच रहा था कि आई एम एक्चुअली गुड एट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। मेरा एसए में ख़त्म, एसए में कम हुआ है और एथिक्स में कम हुआ है। वैसे जीएस 3 तो जनरली कम था। तो चीज़ ये है कि लास्ट ईयर आई वॉजंट equipped। मुझे लगा कि युद्ध में जा रहा हूँ, जो मिलेगा उससे पेलूंगा। ठीक है, सीधा रास्ते में जो मिल रहा है उसी को उठा के वहीं से मैं आंसर बना दूंगा। ऐसा था मेरा एटीट्यूड। पैराग्राफ्स में लिखे मैंने आंसर सारे के सारे। आप कभी ऐसा देखे नहीं होंगे कोई भी एस्पिरेंट का कि उसने ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन टाइप के जो स्टैंडर्ड मॉडल आंसर्स आपको मार्केट में बेचते हैं, उसके अलावा मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैंने सीधा सीधा ऐसे पैराग्राफ्स लिखे हैं GS2 में और मेरे आए हैं 100 से ज़्यादा। तो बात ये है कि इस बार आई एम बेटर equipped with more understanding of what is demanded of me। तो मैं अपने पहले से औजार शार्प करके नए नए बना के जाऊंगा। हर एक चीज़ के लिए स्पेशल टूल रहेगा। माइक्रो डिसेक्शन के लिए अपना स्कैल्पेल रहेगा, बड़े चीज़ के लिए बुलडोज़र रहेगा। हर चीज़ अपन रेडी करके जाएंगे। मेंस के लिए मैं अपने लिए ये बोलना चाहता था और आपके लिए ये बोलना चाहता था कि आपके लिए मतलब जिनका वो डार्क डे है आज, मैं ये बोलना चाहता था कि ऐसे डार्क डेज एंड नाइट्स मैंने भी देखे हैं। यू आर जस्ट इन अ प्रीवियस साइकिल। मैं वो साइकिल्स 2-3 बार गुजर के मैं यहाँ पे हूँ। एंड आई नो ईजी नहीं है, but you have to go through it. Just imagine the pain of a mother when she's giving birth, but she cannot escape it, right? Male people तो at least तो definitely won't understand the pain. Female तो definitely उनको समझ में आता है कि there is no escaping the pain. You have to go through this. अगर हार्ट में दर्द हो रहा है तो हो रहा है। फेलियर एक और चीज़ है कि फेलियर गिव्स यू रियलिटी चेक कि क्या चाहिए यूपीएससी को, क्या चाहिए। अ, आप जो भी चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए व्हाट क्वालिटीज़ चाहिए, अब अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं, रियलिटी चेक मिलता है फेलियर से। अभी और एक और चीज़ है कि ये
आप सब यंग लोग हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करने का डिसाइड किया आपने और किया है तैयारी। आप जैसे लोगों को अपने करियर के बारे में पैनिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी का तैयारी के बारे में सोचते भी नहीं है, उतना भी अवेयरनेस नहीं होता है। आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने करियर के बारे में पैनिक ना करें, क्योंकि सेटल होते हैं सब कोई, आप जो देख रहे हैं सब कोई सेटल होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी सबका अपना अपना ड्यूरेशन और रास्ता होता है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मतलब सिमिलर सिलेबस के, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो करते हैं उनके बारे में तो मुझे नहीं पता है, बहुत बट बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम के थ्रू, इसका रिगर के थ्रू आप जा रहे हैं तो यू आर बिकमिंग रॉक सॉलिड इन पर्सनालिटी, ऑल राइट। यू विल बी बेटर देन मोस्ट पीपल इन मोस्ट थिंग्स, आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप इस ग्राइंड के थ्रू आप जाते हैं और सीखते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ये भी अगला साल आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कुछ मैंने लिख दिए। आरबीआई और नाबार्ड का रिसेंटली आने वाला है, शायद आगे आ रहा है, अब इनकी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, बट इसका सेकंड स्टेज होने वाला है। इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुके हैं, इसका मुझे नहीं पता शायद ये, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर आने वाला है। तो आप बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स सिमिलर ही होती हैं। यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करता है उसके लिए ये चीज़ें प्रिपेयर करने रिलेटिवली ईजियर होती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर हो आप लोग, मैं जानता हूँ अंदर आपके शेर है, मैं देख चुका हूँ शेर जैसे लोगों को। और ये जो फेज़ चल रहा है आपके लाइफ में, ये ऐसा लगता है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, बट आई एश्योर यू कि आप सही मेहनत करते रहिए, एंड आपको अपने मेहनत का फल ज़रूर 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 मिलेगा। लायंस स्लीप टनाइट, कैसे भी हो, हर जगह अपने अपने जगहों में, कोई भी हालत में हो, जस्ट स्लीप टनाइट, स्लीप, स्लीप वेल, गुड नाइट।